Good morning, students, and welcome to the class. Today, we are going to start our chapter in one of the most interesting book. Yes, which book? Yes, the story book. By listening the stories, we just learn about the moral values and about the good things. And that book is moral value book. So, from our moral value book, in which there are lot of interesting stories with the morals and with the good information and knowledge. Today we are going to start the first chapter. So all are ready for the story? Okay, very good. So today we are going to start chapter number 1. And the name of the chapter is Being Cheerful. The name of the chapter is Being Cheerful. The meaning of the chapter is cheerful means when you are always in a happy mood. That is known as cheerful. Being cheerful, okay? So let's start the chapter. But before starting the chapter, I want to ask you some questions. The first question is, do you often smile? Yes or no? Second, are you a happy child who tries to cheer up others as well? And the third question is, do you feel afraid of some problem and forget to smile? So, as the chapter name is Being Cheerful, the questions are also you have to tell the answers according to yourself. Like, do you like smile or not? आप सबको स्माइल करना पसंद है? Yes or no? Yes, everyone likes smile. The next question, do you smile and try to make cheer to others also? क्या आपको दूसरों को भी खुश करना पसंद है? अगर कोई सैड होता है तो आप उसको स्माइल करने की, उसे हैप्पी करने की कोशिश करते हैं? Yes, very good. Do you feel afraid of some problem and forget to smile? क्या आप भी छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी स्माइल करना भूल जाते हैं? Yes. अगर यस है तो अभी हम ये स्टोरी रीड करेंगे एंड बाय दिस स्टोरी वी विल लर्न दैट वी शुड स्माइल ऑलवेज. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ओके, सो नाउ लिसन द स्टोरी केयरफुली and read the sentence along with me. The first sentence is, so start the story now. Pia, the Tweety bird, is always cheerful and happy. This Tweety bird, and the name of this bird is Pia. What is the name of this bird? Pia. She always cheerful and happy. Pia is a Tweety bird and she is always cheerful and happy. Pia जो bird है वो हमेशा, ट्वीटी बर्ड का नेम क्या है? पिया. वो हमेशा हैप्पी रहती है, हमेशा उसके फेस पे स्माइल रहती है. She sings and hops to her tunes. वो अपने जो वॉइस निकालती है, अपने जो ट्यून निकालती है, उस ट्यून के साथ साथ वो सिंग करती रहती है. और हॉप्स मीन्स इधर उधर धीरे धीरे हॉप करके उड़ती भी रहती है और ट्यूनिंग से सिंगिंग करती रहती है. She does not need friends or family to make her happy. उसे किसी फ्रेंड्स या फैमिली की कोई नीड नहीं है कि वो उसे हैप्पी करेंगे तो वो हैप्पी होगी. नो, वो हमेशा हैप्पी मूड में ही रहती है. She sings happy songs to cheer herself. वो खुद को खुश रखने के लिए हैप्पी सॉन्ग्स गाती हैं. Her chicks smile when they wake up in the morning. जब वो सुबह उठती है तब भी स्माइलिंग फेस से उठती है. एंड आई होप आप सब भी जब आपकी मम्मा आपको सुबह उठाती हैं तो आप भी हंसते हुए उठते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं नहीं मम्मा अभी थोड़ा सा और सोना है, प्लीज़ सोने दो. नो,
हमें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हमें टाइम पे सोना चाहिए। और जब मम्मा डैडी बोलें कि अब आप सो जाओ, तब हमें सोना चाहिए। और जब हमारे पेरेंट्स हमें सुबह उठाते हैं, हमें उस टाइम पर उठ जाना चाहिए। और हमेशा कैसे उठना चाहिए? विद द स्माइलिंग फेस। दे लर्न टू ट्वीट एंड फ्लाई विद देयर मदर। और पिया ने ये ट्वीट करना, फ्लाई करना, ये सब किससे सीखा है? अपनी मदर से सीखा है। हमें भी हमारी मम्मा बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, और हमें भी वो बातें सीखनी चाहिए। अपनी मदर की, अपने पेरेंट्स की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मम्मा कहती हैं कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो आप ब्रेकफास्ट कीजिए। और आपकी मम्मा लंच में जो भी बनाती हैं, आपको हैप्पीली वो भी खाना चाहिए। सेम लाइक किसकी तरह? लाइक पिया। Like this bird, she is always happy. She never gets sad. Sapu, the crow, is her neighbor. Sapu, who is Sapu? Sapu is a crow. Sapu is the name of a crow. That is her. Her neighbor means Piya's neighbor. पिया के नेबर में कौन रहते हैं? Crow, and the name of the crow is Sapu. He is surrounded by problems. और उसके पास हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। He goes to Pia for advice. और वो एडवाइस देने के लिए किसके पास आता है? To Pia, वो पिया के पास आता है। Oh Pia, what should I do? All the problems come to me. और वो आके क्या बोला पिया को? मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास ही क्यों आती हैं? मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स ही सराउंड करके रखती हैं, घेर के रखती हैं। आई ऑलवेज पुश देम। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उन्हें पुश करने की, मीन्स दूर रहने की। किससे दूर रहने की? फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। In some corner, but they still peep into my life. मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम मेरी लाइफ से किसी कॉर्नर में रहे, मीन्स मेरी लाइफ से दूर रहें, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ ही जाती हैं। My problems look like witches, foxes and hunters. मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बिल्कुल कैसी हैं? विचेस जैसी हैं, फॉक्सेस जैसी हैं और हंटर्स जैसी हैं, जिन्हें मैं जितना दूर करता हूँ फिर भी वो सडनली मेरे सामने मेरी प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सो हैप्पी? देन सापू इज आस्किंग टू पिया। मेरे पास तो इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं उनसे दूर भी होने की कोशिश करता हूँ, तब भी वो दूर नहीं होती हैं। तुम हमेशा इतनी हैप्पी कैसे रहती हो? Pia smiled and said, when problems come to you, greet them cheerfully. Then Pia smiled and what she said? She said, जब भी प्रॉब्लम्स आपके पास आए, you just greet them cheerfully. आप उनको भी हैप्पीली उनको फेस करो. Give them a hug and squeeze them tight. Pray to God and ask for guidance. अगर आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी आप क्या करें? हैप्पीली एक्सेप्ट करें और कोशिश करें उनको सॉर्ट आउट करने की। साथ ही प्रे टू गॉड, और गॉड से प्रे करें फॉर द गाइडेंस, कि आपको सही गाइडेंस मिल पाए कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे दूर हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स हमसे दूर कैसे हो सकती हैं। फेस देम एंड लुक एट देम विद स्माइल। हमेशा खुद की प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, और वो भी कैसे? विद द स्माइली फेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैम आपको कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन देती हैं या आंसर देती हैं, देन डोंट बी वरी। तो आपको वरी नहीं करना है कि इतना बड़ा आंसर मैं कैसे याद करूँगा या मैं कैसे याद करूँगी। नो, फेस देम। हमेशा कोशिश करो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए,
एंड लुक दैम विद अ स्माइल। और अगर आप सोचेंगे ना ओके 4 लाइन्स का आंसर है, कोई बात नहीं, मैं इनको 1 लाइन करके लर्न कर लूँगा, तो उससे क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि आंसर बहुत बड़ा था। मीन्स हमें हमारी प्रॉब्लम्स का हमेशा फेस करना चाहिए प्रॉब्लम्स को, और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड हाउ वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम with the smiley and happy face. They will shrink with the power of your smile. और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी with the power of your smile. आपकी स्माइल की जो पावर है उस पावर से वो ख़त्म हो जाएंगी. They look wicked and big only when you don't meet them properly. हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें तभी तक बड़ी लगती है जब तक हम उनको अच्छे से फेस नहीं करते हैं. अगर हम उन्हें अच्छे से फेस करेंगे तो प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्यूशन से बड़ी नहीं होती है. मीन्स द सेम एग्जाम्पल एज आई एम गिविंग यू. अगर मैम ने आपको आंसर लिखवाया और आपने सोचा ओ इट इज़ ऑफ 5 लाइन्स और आप डर गए, अगर आप डर जाएंगे तो आपको वो आंसर कभी लर्न ही नहीं होगा. द बेस्ट वे इज़ दिस, ऑलवेज मीट दैम विद स्माइल. हमेशा हमें हमारी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए. अगर हम उसी प्रॉब्लम को हैप्पी होके सुनेंगे और देखेंगे तो हमें लगेगा ओ ओनली 5 लाइन्स है, चलो मैं 1 लाइन करके लर्न कर लेता हूँ. उससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई क्योंकि आपने उसको हैप्पी मैनर में देखा. और द सेम थिंग पिया इज एक्सप्लेनिंग टू द सापू. Treat them as if they are your guest. They will come and go. और हमेशा प्रॉब्लम को एक गेस्ट की तरह हमें फील करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं तो चली भी जाती हैं. एज दे कम एज दे गो. सापू सेड थैंक यू, यू मेड एवरीथिंग सो सिंपल. जब पिया ने सारी बात सापू को समझाई तो सापू समझ गया और उसने क्या बोला, थैंक यू, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और उसको बहुत ही सिंपल बना दी है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सापू वॉज सीन सिंगिंग हैप्पीली जस्ट लाइक पिया. और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या देखा, सापू तो बिल्कुल पिया की तरह हैप्पीली सिंग कर रहा है जैसे कि उसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. I hope all of you understand and enjoy this story. And what is the moral of this story? The moral of this story is yes, that we should always be happy, and we should always face our problem also happily. हमें कभी हमारी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए, हमें उनके हमेशा हैप्पीली फेस करना चाहिए. एंड द मेन थिंग इज दिस, देयर इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है. और अगर किसी वजह से कभी हमारे मम्मा डैडी, हमारे नेबर या हमारा कोई फ्रेंड भी सैड है तो हमें उसे भी चीयरफुल बनाने या हैप्पी करने की कोशिश करनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय द स्टोरी. सो रीड द स्टोरी अगेन एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी. थैंक यू स्टूडेंट्स. Goodbye.